हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज पोट्री और पोट्री में हम तीसरा लेसन पढ़ रहे हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में थोड़ा डिटेल दिया था दैट दिस पोएम इज अ सोनेट एंड अ सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स which have at least two parts. The first one is called octave and the second one is called sestet. Octave is of 8 lines. Octave ये आपकी 8 लाइन की कविता होती है। एक होता है आपका sestet जो कि 6 लाइन की, कुल मिलाकर 14 लाइन की कविता होती है। एक sonnet is a poem of 14 lines and it's a kind of didactic poem. Didactic means क्या होता है? Full of moral values, full of moral teachings. When we study such kinds of poetry, it gives us a moral lesson. जब हम ऐसी कविता पढ़ते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, तो हमको सीख देती है। पोएम को कंपोज चूंकि जॉन मिल्टन के द्वारा किया गया है। He was a great poet, and in the poem, I also told you before, sonnet is of two types. पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल में क्या होता है? व्हाट इज अ पर्सनल सोनेट रिलेटेड टू द पोएट। अगर कवि से संबंधित होगा तब तो पर्सनल सोनेट होगा। इफ द पोएम इज रिलेटेड टू समवन एल्स, किसी और से संबंधित है, तो उसको बोलते हैं इम्पर्सनल। तो दिस पोएम इज अ पर्सनल सोनेट। इन द पोएम जॉन मिल्टन describes about his blindness, अपने अंधेपन पर बताता है, अपने अंधेपन के बारे में व्याख्या करता है। And I also told you before in the last video, John Milton the poet became blind in the age of 44. जैसे उसकी उम्र 44 साल होती है, in the age of 44 he became truly blind. He was unable to see the world anymore. बिल्कुल अंधा हो गया। the world was full of darkness for him. पूरा संसार उसके लिए अंधेरा में, अंधकार में हो गया। He was unable to see the world anymore. संसार को और अधिक नहीं देख सकता था। Along with that, he has been blessed with one quality. उसके अंदर एक गुण भी था। By God, ईश्वर की तरफ से एक टैलेंट प्रदान किया गया था। What was that talent? What was that virtue? To compose poetry. The poet has a quality to compose poetry, to write poetry, but due to his blindness he could not do so. He could not compose. ईश्वर ने उसको क्वालिटी दिया था, गुण दिया था कविता कंपोज करने का, लेकिन जब उसकी 44 वर्ष की अवस्था में जब उसकी आंखों की रोशनी चली गई, when the sight of his eyes has gone, with the result he was unable to see the world. बिल्कुल अंधा हो गया, देख नहीं सकता था। तब पोएट ने क्या किया? The poet decides to compose poetry on his blindness. अपने अंधेपन पर एक कविता कंपोज करने का, लिखने का निश्चय किया। इसलिए पोएम का नाम दिया है On His Blindness. John Milton became truly blind. He became completely blind in the age of 44 years. In the poem, I told you, at first the poet John Milton complains against God. पहले तो शिकायत करता है ईश्वर से, Why have you taken away the sight of my eyes? And how shall I be able to compose poetry in your service? पहले तो कंप्लेन करता है कि क्यों आपने मेरे आंखों की रोशनी ले ली, मैं कविता लिख करके आपकी सेवा कैसे करूंगा। That the talent you have given to me, and due to blindness I could not do so. ऐसा मैं कर नहीं सकता। तो at first the poet complains. He was very disappointed. He was very sorry at the loss of his sight. अपने आंखों की रोशनी चले जाने पर बहुत ही दुखी था। But his patience, उसके अंदर जो धैर्य थी, just prevents his murmur, उसके अंदर जो पीड़ा थी, मर्मर तो पीड़ा, कष्ट, उसको रोकती है और कहती है
It doth God doth not need either man's work or his own gift. ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं है, ईश्वर को कोई जरूरत नहीं है किसकी? either man's work, या तो मनुष्य किसी कार्य की, और his gift, उसकी उपहार की. There is no need to God either man's work or his gift. Why God does not need either man's work or his gift? Because his state is kingly. हम पोएम में देखेंगे लाइन है, his state is kingly. ईश्वर का जो दरबार है उसका, it is like a court of a king. ईश्वर के दरबार है वो राजा के दरबार की तरह है. There are thousands of angels who always stand and wait to obey him. जो हमेशा खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं उसके आज्ञा का पालन करने के लिए. इस तरीके से there is no need either man's work or his own gift. And bearing the burden love, what does the poet want to say at last? अंत में कवि क्या बताना चाहता है? If you are given any kinds of difficulties, any kinds of misfortunes, if you have any kinds of difficulties in your lives, and if you face it bravely, that is the best service to God. जीवन में हमारी मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, किसी प्रकार की विपत्ति आती है, and we just face it bravely. अगर उसका हम बिल्कुल बहादुरी के साथ सामना करते हैं, तो यही हमारे ईश्वर के प्रति सबसे बड़ी सेवा है. What does the poet want to say? Bearing the burden of life is the best service to God. Bearing the burden of life, जीवन में मुश्किलों का सामना करना है, उसको एक्सेप्ट करना, that is the will of God. यही ईश्वर की सबसे बड़ी इच्छा होती है, ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है. And we should do our duty. We should do our duty and we should also have firm faith in God. हम अपने कार्य को करना चाहिए, साथ ही साथ हमें ईश्वर के प्रति गहरी आस्था रखें. We should have deep faith. We should have firm faith in Almighty, in Supreme, in God. ईश्वर में हमारी गहरी आस्था होनी चाहिए, ईश्वर में हमारी दृढ़ आस्था होनी चाहिए, ताकि हम अपने कार्य को आगे करते रहें. ओके, अब हम लोग पोएम स्टडी करेंगे. तो पोएम का हमें कहता है कवि, since he wrote this poem on his blindness, क्योंकि कविता उसने अपने अंधेपन पर लिखा, और अंधा कब हो गया? In the age of 44. इस तरीके से कहता है, when I consider, जब मैं सोचता हूँ, जब मैं विचार करता हूँ. कंसीडर मतलब विचार करना, थिंक करना. थिंक, या फिर एक वर्ड आता है पॉन्डर, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं. तो कहता है when I think, जब मैं सोचता हूँ, जब मैं विचार करता हूँ, how my light is spent, how the light of my eyes is gone, कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई. जब इस पर मैं विचार करता हूँ, how the sight of my has gone, कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई. कब? year half my days, मेरी आधी उम्र के पहले. year मतलब बिफोर, किसके पहले? आधी उम्र के. व्यक्ति की औसत आयु कितनी मानी जाती है? 100. उसका आधा क्या हो गया? 50. लेकिन इसके पहले 44 है ना. इस तरीके से बताता है. When I consider how my life is spent, जब मैं सोचता हूँ, जब मैं इस बात पर विचार करता हूँ, how the sight of my eye has gone, कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई. कब? at half my days, मेरी आधी उम्र के पहले. in this dark world and wide, since I have become blind, I am unable to see the world anymore, so the world is full of darkness for me. अब मैं अंधा हो गया हूँ, मैं संसार को और देख नहीं सकता. इस तरीके से संसार मेरे लिए है. This world has become for me full of darkness. संसार मेरे लिए कैसा हो चुका है? अंधकार में हो गया है, अंधेरे से भरा हो गया है. ठीक है. कहता है in this dark world and wide, जो पूरा जो संसार है, it is full of darkness for me because I am unable to see. ये संसार मेरे लिए अंधकार में हो गया है, because I cannot see, I am unable to see. And that one talent, और जो मेरे अंदर एक गुण है, what is that one talent? What is that talent? To compose poetry, to write poetry. मेरे अंदर गुण क्या है? कविता को लिखने का, कविता को कंपोज करने का. वो क्या होगी? Which is death to hide, which will hide my after death, जो मेरे मृत्यु के बाद ही क्या होगी? समाप्त होगी. हाइड मतलब छिपना. जैसे व्यक्ति के अंदर कोई क्वालिटी हो,
and due to disabilities he could not do so, but the talent has been given to him. व्यक्ति के अंदर कोई क्वालिटी तो है, लेकिन किसी कारण उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, उसका प्रयोग नहीं कर पा रहा है, लेकिन टैलेंट तो है। तो उसी तरीके से कवि के पास एक टैलेंट था, क्या था, इसे लिखा था, एंड दैट वन टैलेंट, जो मेरे अंदर गुण है, व्हाट इज दैट टैलेंट, टू कंपोज पोएट्री, टू राइट पोएट्री व्हिच इज डेथ टू हाइड, व्हिच विल हाइड आफ्टर माय डेथ, जो मेरी मृत्यु के बाद छिपेगी, मेरी मृत्यु के बाद समाप्त होगी। तब क्या होगा, तब तक जब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी तब तक वो कैसे रहेगी, लॉस्ट विथ मी, यूजलेस, मेरे साथ बेकार बनी रहेगी। यूजलेस मतलब वर्डलेस, इट विल बी यूजलेस फॉर मी सिंस आई हैव अ क्वालिटी कंपोज पोएट्री बट आई कुड नॉट डू सो ड्यू टू माय ब्लाइंडनेस, सो इट विल बी वर्डलेस फॉर मी। मेरे अंदर कविता लिखने का गुण तो है, लेकिन अंधेपन की वजह से मैं उसको कंपोज नहीं कर सकता, इसलिए मेरे साथ क्या बनी रहेगी, लॉस्ट विथ मी, यूजलेस, मेरे साथ बेकार बने रहेगी। दो माय सोल मोर बेंट, दो मींस यद्यपि, आई एम स्टिल ईगर, सोल मोर बेंट, बेंट मतलब उत्सुक, डिजायरस होना, मेरी जो आत्मा है, मेरा जो मन है, माय हार्ट इज स्टिल डिजायरस, मेरा जो मन है अभी भी उत्सुक है, किसके लिए, टू सर्व, सेवा करने के लिए, देयर विथ, उसके साथ, किसके साथ, बाय कंपोजिंग पोएट्री, कविता को लिख करके, किसकी, माय मेकर, मेकर मतलब गॉड। What does the poet want to say? The poet wants to say is that he is still desirous to compose poetry in the service of God, to serve God. ईश्वर की सेवा करने के लिए वो कविता लिखने के लिए अभी भी उत्सुक है, but I could not do so, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता। I am still desirous to compose poetry in the service of God. I want to serve God by writing poetry. कविता को लिखकर मैं ईश्वर की अभी भी सेवा करना चाहता हूँ। इसीलिए कहता है, दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरा जो मन है, मोर बेंट अभी भी उत्सुक है, टू सर्व, सेवा करने के लिए, देयर विथ, उसके साथ, किसके साथ, बाई कंपोजिंग पोएट्री, कविता को लिख करके, माई मेकर, अपने ईश्वर की, माई गॉड, मेकर मतलब गॉड, ऑलमाइटी, सुप्रीम। आई मीन, व्हाट डज द पोएट मीन टू से, द पोएट means to say is that he is still desirous to compose poetry in the service of God, in the service of God. फिर कहता है, and present my true account. Now the poet is very disappointed at the loss of his sight, at the loss of the sight of his eyes. तो कहता है, आफ्टर डेथ, यहाँ पे इमेजिन करता है कभी, और कहता है प्रेजेंट आफ्टर डेथ व्हेन आई शैल गो टू गॉड, जैसे कहा जाता है ना, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ईश्वर के पास जाता है, उसके जितने जीवन भर का लेखा जोखा होता है, रिकॉर्ड्स, उसके अनुसार ईश्वर उसको पनिश करता है। तो इसी तरीके से कभी भी कहता है कि आफ्टर डेथ आई शैल प्रेजेंट माय ट्रू अकाउंट, सच्चे लेखे जोखे, अकाउंट मतलब लेखा जोखा, व्हाट आई हैव डन थ्रू आउट माय लाइफ, जो भी कार्य मैंने किया है, कार्य जब ईश्वर के सामने प्रस्तुत करूंगा। लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा न हो, लेस्ट मतलब कहीं ऐसा न हो कि रिटर्निंग चाइल्ड, वह मुझे डांटे फटकारे, चाइल्ड मतलब रिफ्यूज करना, इस वर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, डांटना फटकारना, कि कहीं ईश्वर हमको डांटे न फटकारे न, कि दैट द टैलेंट यू हैव गिवन टू कंपोज पोएट्री, यू हैव बीन गिवन टू कंपोज पोएट्री, टैलेंट तुमको दिया गया था कविता लिखने का, बट यू डिड नॉट डू सो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तो हो सकता है ईश्वर मुझे डांटे। हाँ, तो कहता है, एंड प्रेजेंट माय ट्रू अकाउंट व्हेन आई शैल प्रेजेंट माय अकाउंट आफ्टर माय डेथ बिफोर गॉड, ईश्वर के सामने मृत्यु के बाद मैं अपने लेखे जोखे को ईश्वर के सामने प्रेजेंट करूंगा। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा न हो तो मुझे डांटे फटकारे। तो फिर कभी कहता है अपने आप से, डथ गॉड एक्सेप्ट लेबर, क्या ईश्वर को मनुष्य के कार्य की आवश्यकता है, उसके लेबर की आवश्यकता है, परिश्रम की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्ति के कार्य की, ऐसे व्यक्ति के लेबर की, लाइट डिनाइड द मैन हु हैज लॉस्ट द साइट ऑफ हिज आईज, ऐसे व्यक्ति की कार्य की आवश्यकता जिसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी हो, जिसकी आंखों की रोशनी चली गई हो, डिनाइड होना, वेंट अवे, है ना, लाइट डिनाइड, डथ गॉड एक्सेप्ट लेबर, क्या ईश्वर को ऐसे व्यक्ति की कार्य की, ऐसे व्यक्ति की परिश्रम की आवश्यकता है, लाइट डिनाइड,
जिसकी आंखों की रोशनी चली गई हो। आई फॉन्डली आस्क, कवि कहता है मैंने मूर्खतापूर्ण तरीके से पूछा, बट पेशेंस, लेकिन जो धैर्य था, टू प्रिवेंट दैट मर्मर, जो मेरे अंदर जो पेशेंस था, प्रिवेंट करता है, रोकता है, किसको रोकता है, दैट मर्मर, उस कराह को, उस पीड़ा को, मेरे अंदर जो पीड़ा थी उसको रोकता है। और रोकते ही सून रिप्लाइज, शीघ्र ही उत्तर देता है। क्या उत्तर देता है, उसका पेशेंस उसको क्या समझाता है, व्हाट डज ही मेक यू अंडरस्टैंड, हाँ तो कहता है गॉड डज नॉट नीड, आई, ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं है, आइदर मैन्स वर्क, या तो मनुष्य के कार्य की कोई आवश्यकता नहीं है, आर हिज ओन गिफ्ट, या तो उसके उपहार की कोई आवश्यकता नहीं है, टू बेस्ट बियर हिज माइलियर, जो सबसे अच्छे तरीके से सहन कर लेते हैं, बेस्ट बियर, ईश्वर के द्वारा दिए गए हल्के से कष्ट को सहन कर लेते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वे भी ईश्वर की सबसे अच्छी तरह से सेवा करते हैं, हिज स्टैंड इज किंगली, ईश्वर का जो दरबार है किसकी तरह है, राजा के दरबार की तरह है, उसका जो राज्य कैसा है, ईश्वर के राज्य की तरह है, थाउजेंड एट हिज बाइडिंग स्पीड, और जो थाउजेंड्स ऑफ एंजल आर ऑलवेज रेडी टू ओबे हिम विदाउट स्टॉपिंग, बहुत सारे जो हजारों एंजल से बिना रुके उसके आदेश का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं, एंड पोस्ट ओवर लैंड, और ये जो पूरा धरातल है, एंड ओशन, और जो सागर है, विदाउट रेस्ट, जैसे पृथ्वी है, इट रोटेट्स ऑन एक्सिस विदाउट स्टॉपिंग, अपने अक्ष पर घूमती है बिना रुके, उसी तरीके सागर में जो लहरें, जो वेव्स हैं, इट गोज ऑन अप एंड डाउन, हमेशा चलती रहती हैं, कैसे, विदाउट रेस्ट, बिना किसी आराम की, बिना किसी रुकावट की, दे आल्सो सर्व, वे भी लोग ईश्वर की सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड, जो केवल खड़े रहते हैं, एंड वेट, और इंतजार करते हैं, दैट गॉड गिव हिम ऑर्डर, गिव देम ऑर्डर, एंड दे विल ओबे हिम, कि ईश्वर उनको आदेश देगा और वे लोग उसके आदेश का पालन करेंगे, ऐसे लोग ईश्वर की सेवा करते हैं। What does the poet want to say? The poet wants to say that bearing the burden of life is the best service of God. If you are given any kinds of difficulty, we should think that it is given by God and we face it bravely. And if you do so, that will be the best service to God. Okay? Thank you.